1 to 1.5. This call is now being recorded. pH is 1.6. Hippuric acid and creatinine drugs and other coloring agents are excreted through urine. And the main important is how much urea is released in 1.5 liter of urine. 25 to 30 gram of urea is excreted. Now, urine related disease. Now, polyuria जब 1.5 लीटर या 1 से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा हो, एग्जाम्पल 2 to 4 लीटर के बीच में अगर यूरिन output ho, then we call that disease state as polyuria. Next is oligo. Oligo stands for less. Now, whenever you will get the term oligo, oligo defined as uh, normal से थोड़ा सा कम. Now, urine less than normal secretions is called oligouria. नॉर्मल होता है 1 से 1.5, उससे थोड़ा कम 20 to 30% कम कर लो तो 500 से 750 ml के बीच में इफ यूरिन आउटपुट है देन दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोयूरिया. एंड यूरिया always A stand for opposite, so anuria is absence of urine. Next is uremia. Uremia means high urea in the blood. When kidney is not functioning properly, the urea present in the blood accumulates and it increases to a further high number, which is not acceptable. That is called as uremia. Okay. Next, fifth is hematuria. Hematuria is blood in urine. Whenever urine has blood uh, cells in it, that is called hematuria. Now, functions regulating kidney activity. How do kidney keep its osmolar? How do kidneys maintain the blood's osmolarity and urea concentration? We will be looking at. The first system described here is RAS system. RAS system is basically renin, angiotensin, aldosterone system. Now causes when it gets activated. First cause is fall in blood pressure. Whenever there is a fall in blood pressure or blood volume or fall in GFR. Now it's very obvious that if there will be fall in pressure, there will be also fall in blood volume, and both of these will definitely affect GFR, glomerular filtration rate. Now why? Because GFR is the net pressure flow of the arteries इनटू द कैपिलरी. तो किडनी के केस में रीनल आर्टरी से जो भी प्रेशर आ रहा है इन एफरेंट आर्टरी दैट इज जीएफआर प्रेशर. तो जीएफआर प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन renal artery, and renal artery is directly it is a branch of aorta. So if blood volume fall overall in the major artery like aorta, definitely it will affect kidney. So directly proportional है. So three causes: fall in blood volume, fall in blood pressure, and fall in GFR. Now what it would result because of that, a hormone called renin will be released from kidney. You can see here. Just a second. Whenever such kind of condition happens, kidney releases a special type of hormone called renin. Okay. Now renin, when it is released in the blood, another hormone from liver. Let's suppose कि renin is not secreted, but angiotensinogen, this hormone from liver, angiotensinogen, is always released in trace amount in the blood. Angiotensinogen हर आवर्स के बाद थोड़ा थोड़ा ब्लड में रिलीज होते रहता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनिन रिलीज होगा तो ही. तो 24 आवर्स हमारे ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन के थोड़े ट्रेसेस हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि फ्रेशली सिक्रीशन लीवर उसको टाइम टू टाइम करते रहता है. नाउ जो रेनिन है वो इस ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को, जो किसका सिक्रीशन है, लीवर का, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में. देखो
रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजेन। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर वर्ड के एंड में इनोजेन लिखा है देन इट इंडिकेट्स कि वो इनएक्टिव है। ओके, एंजियोटेंसिनोजेन रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 1 ACE के प्रेजेंट में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के प्रेजेंट एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। एंड एंजियोटेंसिन 1 जब तक ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, लंग्स के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ से वेना कवा में जाएगा, कौन से, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में। हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, टू गेट ऑक्सीजनेटेड। जैसे ही वो लंग्स के पास पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 1, लंग्स एक एंजाइम रिलीज करता है ACE। कौन सा एंजाइम? ACE। ओके, ये रहा ACE। Now this ACE will convert angiotensin 1 into angiotensin 2. Okay, this angiotensin 1 gets converted into angiotensin 2 with the help of ACE, angiotensin converting enzyme. Now angiotensin 2 functions very important for the need point of view. NCERT में सिर्फ एक फंक्शन दिया है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन, बट द मेन फैक्ट इज कि सबसे पहले वो क्या करता है, इट इज अ पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर। अगर वो वासोकंस्ट्रिक्टर है देन व्हाट इट विल डू, इट विल फर्स्टली रिड्यूस द blood pressure. It will increase the blood pressure by reducing the lumen of the capillaries or arteries. क्या करेगा वो, जब भी हमारे ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो लेट सपोज हमने देखा था कि ब्लड फ्लो होने के लिए एक ल्यूमेन होता है। मान लो ब्लड पहले इस लेवल तक फ्लो हो रहा था तो प्रेशर मेंटेन था, बट ड्यू टू सम रीजन वॉल्यूम कम हो गया, अब हमारा ब्लड इस लेवल पे फ्लो कर रहा है। तो प्रेशर कैसे लगा? प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ल्यूमेन ऑफ द कैपिलरीज या वेसल्स या आर्टरी। देखो, जितना प्रेशर ये फ्लूइड इस वॉल पे लगाएगी ब्लड वेसल के, दैट विल बी ब्लड प्रेशर। आर्टरी सबसे ज्यादा प्रेशर झेल सकती है बिकॉज इट हैज मोस्ट थिकेस्ट दिस मीडिया लेयर जिसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। अब ब्लड पहले इस लेवल पे बह रहा था तो प्रेशर हाई था, पर अब थोड़ा सा कम हो गया। जैसे रिवर का एग्जांपल लो, ड्यूरिंग रेनी सीजन उसमें पानी ज़्यादा दिखता है, उसके बाउंड्रीज तक वो फ्लो करती है, ओवरफ्लो करती है, वो हाई ब्लड प्रेशर है। बट समर सीजन में जाओ तो काफ़ी श्रिंक हो जाती है और सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बाकी टाइम साइड से खाली हो जाती है। दैट विल बी लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, जो नदी की जो दो किनारे हैं, ऐसा समझ लो कि वो शॉर्ट हो जाते हैं खुद ही, ताकि वो कम पानी भी ज़्यादा लगे। वैसे ही अब इतना डिस्टेंस जो कम हुआ है, आप देख रहे हो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है इस जगह पे, तो ब्लड वेसल्स यहाँ से इस जगह पे आ जाती है। ओके, इस वाली जगह पे। तो पहले से अपना काफ़ी हद तक उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम वासो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वासो कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो ये एक पोटेंट वासो कंस्ट्रिक्टर है। वासो कंस्ट्रिक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन reduce the size of blood vessels, which would result in basically increase in blood pressure. So potent vasoconstrictor है जिसकी वजह से it would increase blood pressure. Now second function it does is हाइपोथैलेमस के थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देता है। हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जो हमें ब्लड वॉल्यूम जैसी बॉडी में थोड़ा सा कम होता है तो वो इट ट्रिगर अवर सेल्फ, इसकी वजह से वी गेट थर्स्ट और हम वाटर को ड्रिंक करते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़े। तो हाइपोथैलेमस जो है थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट करवा देगा एंजियोटेंसिन 2 के कहने पे। दिस ऑल फंक्शन इज डन बाय एंजियोटेंसिन 2। तो देन क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है एल्डोस्टेरॉन निकालेगा।
एल्डोस्टेरॉन वुड एक्ट ऑन डीसीटी, एंड डीसीटी जो है वहाँ से डीसीटी पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा अलॉन्ग विद वाटर विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। 3 सोडियम अंदर 2 पोटेशियम बाहर। हमने अभी यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा था कि डीसीटी पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का सिक्रीशन होता है अंडर एडीएच के प्रेजेंस में। तो यह एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में आई विल शो यू। ये देखो के प्लस सिक्रीट हो रहा है नीचे की तरफ, ये डीसीटी है, एंड यहाँ पे सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये देखो NaCl ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो डीसीटी पे जो भी रीअब्जॉर्प्शन हम करा रहे हैं वो अगर वो सिलेक्टिव होता है या तो एल्डोस्टेरॉन की वजह से होता है या तो एडीएच की वजह से। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हुआ हुआ एक हार्मोन है, it will act 80% on DCT and 20% on PCT, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा वाया सोडियम पोटेशियम पंप। और इन सब चारों कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण व्हाट विल हैपन कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड एन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से अगेन वाटर बढ़ जाएगा, और जो रास सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, फॉल इन ब्लड वॉल्यूम, फॉल इन ब्लड प्रेशर एंड फॉल इन जीएफआर, वो तीनों केस जो है सॉल्व हो जाएंगे और बॉडी का ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा। नाउ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आता है कि रेनिन जो है, जो हमने पहले लिखा है, वो किडनी से निकलता कैसे है। ओके, अब इसमें देखो रास सिस्टम का नाम कैसे पड़ा। सबसे पहला हार्मोन निकला रेनिन, तो आर स्टैंड फॉर रेनिन, ए एंजियोटेंसिनोजन, थर्ड ए इज एल्डोस्टेरॉन, जो आखिरी हार्मोन था यहाँ पे हमने देखा एल्डोस्टेरॉन, एंड एस स्टैंड फॉर सिस्टम। तो रास सिस्टम बेसिकली किडनी के ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की एक प्रोसेस है। डू रिमेम्बर ये एक एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, इसमें हार्मोन्स निकलते हैं, ना कि न्यूरल फेनोमेना है। और जीजी अपरेटस रेनिन कहाँ से निकलता है, वी विल स्टडी दैट, बिकॉज किडनी जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बट इसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये हार्मोन निकला। नाउ रेनिन जो है वो जीजी apparatus से निकलता है, फ्रॉम वेयर इट गेट रिलीज, जीजी apparatus, एंड apparatus, द टर्म apparatus stand for union of two or more body parts for a particular secretion. Now जीजी apparatus मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा बॉडी के एक स्पेशलाइज सेल पार्ट, कोई भी बॉडी का एक स्पेशलाइज पार्ट कलेक्टिवली फंक्शन करता है फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो जीजी apparatus, it is joint union of modified columnar cells of DCT। यूजुअली DCT में सिंपल क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, बट जो भी कैपिलरीज एफरेंट आर्ट्रियोल के क्लोज में आती हैं DCT की, वो कॉलमनार हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। उस कॉलमनार सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्यूला डेंसा, एंड स्पेशलाइज स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेंट मेजर एंड इफरेंट माइनर आर्टेरियोल्स। तो दोनों दो जनों का यूनियन है, मेजरली किसका है, मैक्यूला डेंसा ऑफ डीसीटी, डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड एफरेंट आर्टेरियोल मेजर एंड इफरेंट माइनर। ये दो एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, जेजी सेल्स। तो जीजी अपरेटस जेजी सेल्स प्लस मैक्यूला डेंसा से बना है। जेजी सेल्स किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पे देखो डायग्राम ड्रॉ किया गया है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ से ब्लड आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल। मैक्यूला डेंसा इस ये मैक्यूला डेंसा के ये ट्यूब है जो कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बताऊं तो ये कुछ ऐसा है।
तो दिस स्टैंड फॉर पीसीडी। ये रहा एफरेंट आर्टरियोल एंड ये रहा इफरेंट आर्टरियोल। तो ये वाले रीजन को हम जूम कर रहे हैं। दिस इज द पर्टिकुलर रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो जो रीजन को मैंने सर्कल किया वो रीजन को हम जक्स्टा जेजी एपरेटस बोलते हैं। तो उसमें मेजरली दो रोगों का इम्पोर्टेंट है। तीसरा तो एक स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन जैसे काम करता है। मेजर पार्ट है मैक्युलर डेंसा, जिसको मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट है एफरेंट आर्टरियोल का जेजी सेल्स। ओके, तो एफरेंट आर्टरियोल के ब्लड वेसल्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को, जिसको हम बोलते हैं जेजी एपरेटस, सॉरी जेजी सेल्स। नाउ जेजी सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा ग्रैन्यूल्स भर जाता है। क्या भर जाता है? ग्रैन्यूल्स। यू कैन सी दैट, बहुत सारा ग्रैन्यूल्स भर जाता है। तो ग्रैन्यूल्स भरने के बाद, ये ग्रैन्यूल्स भरने के बाद जब भी मैक्युला डेंसा के कॉलमनार सेल्स, यू कैन क्लियरली सी ये मैक्युला डेंसा के बाकी सेल्स क्या हैं? क्यूबॉइडल शेप के हैं। दीस आर, ये सब क्यूब शेप के हैं। बट ये वाले जो हैं कॉलमनार शेप में हैं। यू कैन क्लियरली विजिबल, इतने इलोंगेटेड सेल्स हैं। तो ये कॉलमनार सेल्स क्या करते हैं? whenever there is a fall in blood volume और blood pressure या GFR, तो ये लोग उसमें वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करते हैं। अब अगर वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा डीसीटी में, देन दे विल सिग्नल जेजी सेल्स, क्योंकि जस्ट बाजू में ही है और वो यूनियन बना रहे थे यहाँ से। थ्रू केमिकली ये कुछ सिक्रेट करते हैं जिससे जेजी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जेजी सेल्स एक्टिव होते ही ब्लड के अंदर डायरेक्टली क्या रिलीज कर देते हैं? रेनिन। ओके, ब्लड के अंदर डायरेक्टली क्या रिलीज हो जाएगा? रेनिन। डू रिमेम्बर, एक एन वाला रेनिन निकलेगा। डबल एन वाला रेनिन इस मिल्क प्रोटीन जो छोटे बच्चों में मिल्क को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, केसिन को, मिल्क प्रोटीन केसिन को। डबल एन इस मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड सिंगल एन इस यूरिन के अंदर, किडनी के अंदर एंजियोटेंसिन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम। दोनों में डिफरेंस है, ये याद रखना। तो सिंगल एन वाला रेनिन रिलीज होगा कहाँ से? वाया जेजी सेल्स, और फिर ये यहाँ से रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। एंड द फॉलोइंग थिंग्स कंटिन्यू इन द सिमिलर फैशन। ओके, तो ये जो हमने पाथ पढ़ा कि रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में, वो कैसे किया हमने नीचे देख लिया। फिर आगे का प्रोसेस यू ऑल नो इन द रास सिस्टम। नाउ सेकंड फंक्शन है ईडीएच सिस्टम। अब हाइपोथैलेमस को या तो एल्डोस्टेरोन या तो एंजियोटेंसिन 1 या तो हाइपोथैलेमस के रिसेप्टर्स के थ्रू पता चल जाता है। बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं कि हाँ ब्लड वॉल्यूम और ब्लड के सॉल्ट्स कम हो गए हैं। देन व्हाट हाइपोथैलेमस डू? हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पे एक्ट करके एक हार्मोन निकालता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को वी कॉल्ड आल्सो न्यूरोहाइपोफाइसिस, उस पे एक्ट करके वो एक हार्मोन निकालता है वैसोप्रेसिन या एडीएच, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, which acts on DCT and with the help of aquaporins। एक्वापोरिन वो रिसेप्टर है जहाँ से वो चीज़ें रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो अगेन एल्डोस्टेरॉन भी डीसीटी पे एक्ट कर रहा था एंड वाटर भी डीसीटी पे ही एक्ट कर रहा है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि डीसीटी इज द मेन टारगेट। चाहे वो एल्डोस्टेरॉन है वो भी डीसीटी पे एक्ट करता था, चाहे वो एडीएच हो वो भी डीसीटी पे एक्ट करता था। ना एक्वापोरिन चैनल्स के थ्रू
नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है वाटर, तो वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है along with सोडियम, जिसकी वजह से अगेन सॉरी ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो एडीएच सिस्टम एंड रास सिस्टम दोनों ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने में लगे हैं। अब अगर ये केस चलता ही रहा 1 घंटे तक, तो ब्लड का वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है। अब इनको रोकने के लिए कोई तो चाहिए। हेंस टू स्टॉप देम, जब भी एट्रिया के अंदर ब्लड ज़्यादा आने लगता है, तो हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, वेनेवर हार्ट्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वही जो मैंने आपको बोला, तो हार्ट के जो एट्रिया के वॉल्व्स हैं, they release a hormone called atrial natriuretic factor. What they release? Atrial natriuretic factor. ANF जो है सबसे पहले क्या करता है, वो ADH और RAS सिस्टम को निगेटिव फीडबैक देकर रोकता है। What it does? RH RAS सिस्टम और ADH को निगेटिव फीडबैक देकर रोकता है, एंड बाकी दोनों RAS और एडीएच दोनों भी वासो कंस्ट्रिक्टर थे, ये वासो डायलेटर है। ये जो ल्यूमेन कम हुई है, जो नदी की विड्थ कम हुई है, वो फिर से नॉर्मल हो जाती है अपने लेंथ पे, दैट इज कॉल्ड वासो डायलेटर। मतलब पहले मान लो इतनी थी, अब वासो कंस्ट्रिक्टर होके ल्यूमेन इतना छोटा हुआ है, अब फिर से ये ऐसा हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वासो कंस्ट्रिक्टर। ओके, सॉरी वासो डायलेटर। तो ये वासो डायलेटर कौन है? सिर्फ एएनएफ है। वासो कंस्ट्रिक्टर कौन कौन है? एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच। ना वासो डायलेटर होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर जो है उसको कम कर देगा या नॉर्मल कर देगा, जबकि रास सिस्टम एंड एडीएच इट वाज इंक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, जबकि एएनएफ जो हार्ट से रिलीज हो रहा है, इट रिड्यूसेस द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। नाउ मिचुरेशन। व्हाट इज मिचुरेशन? मिचुरेशन इज कि जब भी हमारा ब्लैडर या यूरिन का जो बॉक्स है, यूरिन का जो पैकेट है बॉडी का, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, वो व्हेन इट गेट्स फिल्ड, हाउ डू वी एक्सक्रीट इट? ओके, हाउ डू वी एक्सक्रीट इट, दैट इज द कंसर्न। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ अनवॉइडिंग मीन्स उसको क्लियर करना पूरे यूरिन को बॉडी में से, दैट इज, या एम्प्टी करना उस वॉल्यूम को, दैट इज कॉल्ड मिचुरेशन। So the process of release of urine is called micturition. The process of release of urine is basically called as micturition. It is a neural mechanism. ये mainly neural mechanism है, into which feeling of bladder sends a sensory impulse to brain. The brain, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका ब्लैडर है और ये यहाँ से यूरिन ऐसा ड्रॉप बाय ड्रॉप बनते रहता है। ओके, तो मान लो इसके ऊपर रिसेप्टर से या इतना बन जाएगा या इतना बन जाएगा। जैसे ये लगभग 70 to 80% भर जाता है, तो यहाँ से इसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते रहते हैं कि यूरिन कितना भर गया है। अब अगर यूरिन 70% भर गया अगर, तो क्या होता है, ये हमें सिग्नल देता है कि हमें इसको एम्प्टी करना है। मान लो हम किसी इमरजेंसी क्लास में बैठे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, वी कैन नॉट डू दैट ऑन द स्पॉट, तो हम क्या करते हैं, वी अवॉइड। धीरे धीरे यूरिन डिपॉजिट अगेन ब्लैडर में बढ़ रहा है। अब वो 80% भर गया, 85% भर गया, 90% भर गया, अगेन हमारा ब्लैडर जो है ब्रेन को सिग्नल देगा कि यूरिन 90% भर चुका है, क्या करना है बताओ। हम अभी भी बोल रहे हैं बस 2 मिनट बचा है, 2 मिनट रुकते हैं, 3 मिनट रुकते हैं, उसके बाद वी विल go to washroom and will have unvoiding process. But मान लो कि ब्लैडर 99% भर चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, ब्रेन ज़्यादा ट्रिगर करेगा एंड वी विल बी इन सर्च ऑफ एक्सक्रीटिंग द यूरिन। तो अब क्या होता है, जैसे 70 से 80% जाता है, तो ब्रेन को कैसे सिग्नल जाता है, हमें सिर्फ वो पाथवे पढ़ना है। तो जैसे ही 70 से 90% के बीच यूरिन भर जाता है, सेंसरी रिसेप्टर्स जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे,
ब्रेन की तरफ, और वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि जो ब्लैडर है वो भर चुका है एंड वी हैव टू एम्प्टी। तो ब्रेन क्या करता है यूजुअली, ये जो पूरा मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक मस्कुलर बैग है। ये पूरा ब्लैडर जो है, दिस इज ब्लैडर, ये क्या है, एक मस्कुलर बैग है, मसल्स हैं इसमें। और ये मसल्स कौन सी होती हैं, उस मसल का नाम है डेट्रूसर मसल। क्या है, डेट्रूसर मसल। नाउ यहाँ पे लिखा भी है स्मूथ मसल जिसका नाम होता है डेट्रूसर। ओके, डेट्रूसर जो है यूजुअली रिलैक्स होती है। क्या होती है, रिलैक्स। तो ये मसल्स रिलैक्स होती हैं और नीचे यूरेथ्रा के दो स्पिंचर होते हैं। एक होता है इंटरनल स्पिंचर जो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, और एक होता है एक्सटर्नल जो हमेशा रिलैक्स होता है। अब जब ब्लैडर भर जाता है और हम लोग वॉशरूम में हैं, वी नीड टू एक्सक्रीट द इट, तो ब्रेन सेकेंड नर्व से, ब्रेन डिसीजन लेने के बाद सेकेंड नर्व से एक सिग्नल भेजता है मोटर नर्व के थ्रू। आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दो सिग्नल देता है। एक वो ब्लैडर को देता है कि स्मूथ मसल्स जो है डेट्रूसर जैसे, वो पहले जो है रिलैक्स है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करे। और इंटरनल स्पिंचर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिलैक्स करे, मतलब वाइस वर्सा, दे विल चेंज देयर पोजीशन। स्मूथ मसल जो है, जो रिलैक्स कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड इंटरनल स्पिंचर जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दे वुड रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत जोर से प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, तो इट विल गो, तो प्रेशर जो है डोम शेप के ब्लैडर से टकरा के नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, एंड स्पिंचर अब ओपन हो गया। पहले ये स्पिंचर बंद था, अब स्पिंचर खुल गया, तो यहाँ से यूरिन सीधा के सीधा बाहर चले जाएगा। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अनवॉइडिंग ऑफ यूरिन। इसमें दो ही चीज हुई है, पहले जो मसल रिलैक्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जो स्पिंचर कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो गया, और प्रेशर जनरेट होने के बाद वो रिलीज हो गया। किसके सिग्नल से, ब्रेन के। द ब्रेन इन रिस्पॉन्स सेंड्स मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर। इनिशियली रिलैक्स स्टेट में रहता है, एंड अनदर सिग्नल, दो सिग्नल ब्रेन भेजता है, एक मसल्स को, दूसरा यूरेथ्रल स्पिंचर को, टू रिलैक्स इनिशियली, जो कि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, स्पिंचर इनिशियली कॉन्ट्रैक्टेड था, मसल रिलैक्स था, बट नाउ दे विल डू वाइस वर्सा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्पिंचर रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से यूरिन बाहर चले जाएगा और मिचुरेशन रिफ्लेक्स हो जाएगा। ओके, नाउ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और कौन से ऑर्गन्स है जो एक्सक्रीशन करते हैं, देन फर्स्ट इज लंग्स। लंग्स जो है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 भी रिलीज करता है। बॉडी में जो भी चीज मेटाबॉलिकली हमारे काम की ना हो, दैट इज वेस्ट। सिर्फ यूरिन वेस्ट नहीं है, तो CO2 गैस का भी हम कोई यूज नहीं करते हैं, तो दैट इज वेस्ट। नाउ दे रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2 approximately 200 ml per minute along with water। तो 200 ml पर मिनट रिलीज होता है, थोड़ा बहुत उसमें वाटर के ट्रेसेस होते हैं। और लीवर, इट एक्सक्रीट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। इन सबको कौन रिलीज करता है, लीवर। तो वो हमारा मेन डस्टबिन है जो बॉडी में एक्सक्रीशन करवाने में मदद करता है। नाउ स्किन, इट हैज टू एक्सक्रीटरी ग्लैंड। स्किन के दो पार्ट हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस। स्वेट ग्लैंड को बोलते हैं NSC, स्वेट ग्लैंड रिलीजेस NaCl, यूरिया इन ट्रेस अमाउंट, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। एंड सीबेशियस ग्लैंड जो है स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम में रिलीज करता है। ओके, नाउ मिचू डायलिसिस एक आखिरी पार्ट है। डायलिसिस क्या है, जिसके ब्लड में यूरिया का कंटेंट बढ़ जाए बिकॉज किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो हम बोल सकते हैं यूरेमिया डिसऑर्डर जिसको हो। यूरेमिया डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें ब्लड में यूरिया का काउंट बढ़ जाता है। तो डायलिसिस आपने बहुत बार सुना होगा, डायलिसिस इज यूज फॉर जिसकी किडनी फेल हो चुकी है या जो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हो उसके पहले, फॉर सर्वाइवल दे यूज डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग बंदे के आर्टरी से ब्लड रिमूव करते हैं। ब्लड इज रिमूव फ्रॉम आर्टरी। नाउ ब्लड रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, उस ब्लड को ट्यूब के थ्रू पास करते हैं। ठीक है, ये आर्टरी को मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ।
ब्लड के अंदर हेपेरिन डालते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट है, और फिर ब्लड को हम पास कर रहे हैं, आप देख सकते हो एक ट्यूब से। ये ट्यूब को हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। क्या बोलते हैं? सेलोफेन ट्यूब। ये ट्यूब में जैसे जैसे ब्लड पास हो रहा है एक मशीन में, जस्ट सेकेंड, जैसे जैसे इस मशीन में पास हो रहा है, ये ट्यूब को सेलोफेन ट्यूब बोला है, ये देखो। एंड यहाँ पे अगल बगल ये फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलेसिंग फ्लूइड। यहाँ पे नाम लिखा है डायलेसिंग फ्लूइड। इस फ्लूइड में सब कुछ सेम होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लूइड कंटेंट सेम कंपोनेंट एज प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। सब कुछ सेम होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, बेसिक सॉल्ट्स, वाटर, सब कुछ सेम होगा। क्या सेम नहीं होगा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्या सेम नहीं रहेगा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो इसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट ब्लड के अंदर ज़्यादा है, बाहर नहीं है, तो वो धीरे धीरे यहाँ से ऐसा ब्लड से एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर की तरफ ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब देखो NH2 यूरिया जो भी है सब धीरे धीरे ऐसा बाहर की तरफ जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ब्लड में सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर आ जाता है। ऐसा 4 to 5 राउंड घूमने के बाद फिर हम लोग उसको सीधा ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ पे? वी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट इट इनटू द वेन वाया। जो एंटी हेपेरिन डाला था वो पहले हेपेरिन डाला था ना, एंटी हेपेरिन डालते हैं या एंटी कोगुलेंट डालते हैं, और ब्लड को डायरेक्टली वेन के थ्रू वेन बॉडी में री इंसर्ट कर देते हैं। निकालते आर्टरी से हैं एंड वी इंसर्ट इट वाया वेन। तो ये याद रखना, ये एक डायलिसिस है, एक नकली यूरिया को रिलीज करने का या किडनी को फिल्टर करने का प्रोसेस है, जिसमें से ब्लड को पास करते हैं एक ट्यूब के थ्रू एक मशीन में। मशीन के अंदर डायलिसिंग फ्लूइड होता है, डायलिसिंग फ्लूइड में सब कुछ होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता है। सेलोफेन ट्यूब से पास होने के बाद सारा नाइट्रोजनस वेस्ट वहाँ कलेक्ट होता है, एंड दैट वेस्ट जो कलेक्टेड है उसमें सिर्फ यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट रह जाते हैं, बाकी ब्लड नॉर्मली पास हो जाता है। वो ब्लड हम एंटी कोगुलेंट को हटा के फिर से वाया वेन इंसर्ट कर देते हैं। अब जो ब्लड निकाला था उसमें यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट था, दो जो ब्लड हम अंदर डाल रहे हैं दैट विल बी फ्री ऑफ यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायलिसिस। ओके, नीट में क्वेश्चन आता है कौन से ट्यूब के थ्रू होता है, ये याद रखना। डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल किडनी। द ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम आर्टरी आफ्टर एडिशन ऑफ एंटीकोगुलेंट हेपेरिन। The blood is passed through permeable tube called cellophane membrane tube. The tube is only permeable for nitrogenous waste and N2 waste. Surrounding the tube has a dialysing fluid which has same composition as that of plasma except nitrogenous waste. Nitrogenous waste is easily removed from the tube due to concentration gradient, and purified blood is pumped back into the vein by using antiheparin. Use renal failure patient, high uremic blood, हाईएस्ट N2 वेस्ट इज हेपेटिक वेन, एंड लीस्ट जो होता है वो रीनल वेन होता है। ओके, दैट्स हाउ द चैप्टर एंड्स। आप एक बार घर पे ये चैप्टर को पढ़ना। मैंने जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता था आई हैव सॉल्व यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।